Hello students, welcome in the next session of your chapter, that is circulation. In this session we will solve next 25 questions and then we'll get through this chapter. Okay, now your 26th question is: antigens produced by viruses are called as. So mutons, virions, cistron and lysines. Okay, so antigens produced by viruses. तो क्या कहते हैं उसे? म्यूटॉन, विरियन, सिस्ट्रॉन या लाइसिन्स. क्या कहेंगे उसे? हम उसे कहेंगे विरियंस. So these virions are nothing but the proteinaceous products produced by or secreted by viruses which enters in your body. Okay, mutons are the you can say product of your mutation. So if your particular enzyme or a particular protein is mutated, that one is called as muton. Okay. Is this clear? So muton of the particular frameshift mutation or point mutation. Okay, so there are various types of mutation, you know. Okay, but and particular product of that type of mutation is called as mutant. Okay, then cistron are related to your genetics. So when we'll see part of genetics, you'll come through, you'll get to know this term cistron. And lysines are nothing but your one of your amino acid. So answer is to virion. Now next question: hardening of the wall of small arteries is known as thrombosis, arteriosclerosis, एथेरोस्क्लेरोसिस, हार्ट अटैक. सो आर्टरीज, आपको पता है कि आर्टरीज में से एक फ्लो से एंड प्रेशर से ब्लड फ्लो होता है. ठीक है, एक क्या होता है, ब्लड का फ्लो शुरू रहता है और उसके लिए उसकी जो वॉल होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होती है एंड थिक होती है. ठीक है, ताकि वो ब्लड का फ्लो जो है या ब्लड का फोर्स जो है वो टॉलरेट कर सके. पर कभी कभी क्या होता है कि सी दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर पाइप. आपका जो पानी का पाइप होता है ना, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है. तो सिमिलरली दैट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट इन योर आर्टरीज. ओके, सो अगर उसकी जो वॉल है वो हार्ड हुई तो फ्लो में प्रॉब्लम आता है, आपका जो ऑर्गन्स के मूवमेंट होते हैं उसमें प्रॉब्लम आता है. इज इट क्लियर? सो that hardening is called as nothing but arteriosclerosis. Okay, आया समझ में? देखो, हमने अभी तक बहुत सारे टर्म्स पढ़े हैं. ठीक है, जिसमें आपको ये समझ में आता है कि जिसका एंड जो है, वर्ड का जो एंड जो होता है, उससे पता चलता है कि वो वर्ड किससे रिलेटेड है. ओके, तो जब भी आपके पास कोई भी ऐसा वर्ड है जिसका एंड सिस से हो रहा है, ओके, तो व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स inflammation. Okay, that means inflammation of that particular organ. आया समझ में? So inflammation does not every time mean that आपको वो सूजन आएगा वगैरह, पर inflammation is the product or you can say result of very complex interactions and reactions taking place in your body. ठीक है, आया समझ में? So arteriosclerosis is the hardening of wall of small arteries present in your body. Okay, now we'll see the next question. Narrowing of lumen of artery because of deposition of fats is called as. So these are the various diseases associated with your um, circulatory system. Okay, and your body fluid, that is your blood. Okay, so narrowing of lumen of artery because of deposition of fats is called as atherosclerosis. Okay, so see the difference between these two terms, that is arteriosclerosis and atherosclerosis. So these are similar words to pronounce, but
there is difference. Hardening of the wall of arteries are known as um, arteriosclerosis, and narrowing the lumen, so narrowing the inner part of your artery because of some depositions, accumulation of body fats, is known as atherosclerosis. Okay, atherosclerosis. ठीक है, तो आप पूछोगे कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन कहाँ है, ठीक है, तो ये जो है ना कि ये जो होता है, मतलब हार्डनिंग हुआ है, उसके बाद फैट डिपॉजिट हुआ है, ओके, आपका जो ब्लड है वो ज्यादा, यू कैन से उसकी विस्कोसिटी हाई है, वो उसका वाटर कंटेंट कम हुआ है, ठीक है, तो ये जो सारे डिसीजेस है ना, तो उसका क्या होता है एग्जैक्टली इसका इफेक्ट क्या होता है कि we will see some kind of inflammation in you can say um, मतलब क्या होता है कि उसका जो कुछ भी ये है ना कि इफेक्ट जो है ना, विजिबल रिजल्ट जो है ना, वो इन्फ्लेमेशन का होता है। आपके जो जॉइंट्स है या आपके जो स्किन पे यू विल सी द इन्फ्लेमेशन, ओके, एंड इन्फ्लेमेशन एवरी टाइम डज नॉट मीन कि विजिबल इन्फ्लेमेशन होगा। In your inner body parts also you will encounter inflammation, okay, so that's why it is called as cis, so prefix is attached, which is cis, okay, so cis means inflammation. Now next question. In mammals, the opening of post cavil in the right auricle is guarded by, so options are mitral valve, Thembaceous valve, Eustachius valve, and bicuspid valve. Okay, so this is very deep question actually, and this is not related to your syllabus. Okay, so just take this as your general knowledge question. Okay, so in mammals, the opening of post cavil in the right auricle is guarded by. So three, that is known as Eustachius valve. So you always remember just this thing, that every connective organ, or every you can say artery, vein, then cavities, you can say the openings are guarded by some or other linings, okay, and valves are the special very specific and characteristic feature present in your heart, ठीक है, सो इन वाल्व्स का काम क्या रहता है, इन वाल्व्स का काम, सबसे बड़ा काम रहता है प्रोटेक्शन का, ठीक है, और वो क्या करता है, इंटरनल शॉक एंड मैकेनिकल इंजरीज से बॉडी को और उस सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। सो इन योर ब्रेन आल्सो देयर आर वेरियस ऑर्गन्स और वेरियस यू कैन से सिस्टम्स प्रेजेंट टू प्रोटेक्ट योर ब्रेन from mechanical injuries and shocks, okay, so in the same way in your heart also there are various systems present for that, okay. Now, next question. Yes. The chief difference between the erythrocytes of man and frog is, so erythrocytes means your red blood corpuscles. Okay. Chalo. Human erythrocytes have more hemoglobin. Human erythrocytes have more nuclei. Human erythrocytes have no nuclei, and human erythrocytes have less hemoglobin. So, what's the answer? Which is the basic difference between erythrocytes of man and frog is human erythrocytes have no nuclei, okay, erythrocytes में these are the only cells present in your body that does not have nuclei present in them, okay, आया समझ में, so human erythrocytes में RBCs में nuclei नहीं रहता है, okay. Next question. The coagulation of blood occurs due to, coagulation क्यों होता है, destruction of erythrocytes, destruction of leukocytes, change of fibrinogen chain into fibrin, and formation of serum. क्यों होता है, you will see coagulation reaction कब होती है कि जब आप
दो ऑपोजिट ब्लड ग्रुप जो होते हैं वो एक साथ आते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट इनकॉम्पेटिबिलिटी ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स टू डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स यू विल सी कोएगुलेशन रिएक्शन, ठीक है। You will say in technical terms that reaction is called as agglutination, ठीक है। तो ये agglutination coagulation actually होता क्यों है? So change of fibrinogen into fibrin, okay। So that type of coagulation you will see, coagulation means nothing but formation of your clots, okay। That coagulation you will see when आपको कुछ वुंड होती है, ठीक है, कुछ इंजरी होती है और वहां से ब्लड बहने लगता है, ठीक है। सो जब वो ब्लड बहता है तो थोड़ा सा ब्लड फ्लो होने के बाद अपने आप वो ब्लड रुक जाता है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द because of the formation of clots, and that clots form because of the change of fibrinogen into fibrin, ठीक है। हमने हमने ये सब क्या किया है, हमने ये सब पढ़ा है अभी पिछले लेक्चर में, हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, ओके। चलो नेक्स्ट, safe and effective means of producing artificial immunity against smallpox by vaccine was first discovered by, okay, Edward Jenner, Hopkins, डॉक्टर सॉक एंड एल पास्चर। तो स्मॉलपॉक्स के अगेंस्ट फर्स्ट वैक्सीन किसने जनरेट की थी? So Edward Jenner was the scientist who discovered first safe and effective means of artificial immunity, that is nothing but your passive immunity, ठीक है। So in vaccination also there are types, active immunity vaccines and passive immunity vaccines, ठीक है। passive immunity में क्या होता है कि आपके बॉडी में आप वैक्सीन से रेडीमेड एंटीबॉडीज देते हो, ठीक है। और ये पैसिव इम्यूनिटी का टाइप है। और एक्टिव इम्यूनिटी में क्या होता है, आप killed and or attenuated means what, live virus but whose toxicity has been reduced, ठीक है। ऐसा जो वायरल पार्टिकल्स होते हैं वो आप बॉडी में इंजेक्ट करते हो, ओके। तो ये टाइप होता है उसका। तो एडवर्ड जेनर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डेवलप्ड safe and effective measure of producing artificial immunity against smallpox, ठीक है। आया समझ में? So answer is 1. Now we'll see the next question. Sometimes RBCs form a pile or stack known as lacuna, islet, aureolus and canaliculi. So ये क्या होता है एग्जैक्टली, ये पाइल और स्टैक क्या होता है? तो जब ब्लड सैंपल जो होता है ना वो अंडर माइक्रोस्कोप देखते हो, ठीक है, तो यू विल फाइंड, आप सेल्स डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। उस ब्लड को क्या करना पड़ता है एक्चुअली, आपने वैसे के वैसे ब्लड अगर माइक्रोस्कोप में डाला मतलब आपने देखा, तो आप कुछ नहीं देख सकोगे, आपको सिर्फ रेड ऑरेंज कलर दिखेगा, ठीक है। पर जब आप उस ब्लड का डाइल्यूशन करते हो तो उसे उसे कहते हैं आरबीसी सस्पेंशन, ठीक है। क्या कहते हैं उसे? आरबीसी सस्पेंशन। और उसका परसेंटेज भी होता है 1% आरबीसी सस्पेंशन, 0.5% आरबीसी सस्पेंशन। और वो कैसे बनाते हैं उसका एक लैबोरेटरी मैनुअल्स में स्टैंडर्डाइजेशन का एक चार्ट भी होता है, ठीक है। तो जब आप वो बनाते हो उसके बाद जब आप ब्लड सैंपल माइक्रोस्कोप में ये करते हो, अंडर माइक्रोस्कोप आप देखते हो, तो आप एक्चुअली वो आरबीसीज देख सकते हो, ओके। वो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, वो सब आप अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हो, ओके। पर जब कभी कभी क्या होता है, आप माइक्रोस्कोप में ये इनकाउंटर करते हो कि कुछ आरबीसीज जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, ठीक है, ऐसा उसका क्लम्प बना है। तो उस क्लम्प को, उस टैग को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं रोलेक्स, ओके। सो this is why this happens, because of the some kind of, you'll see सिग्नल और यू विल सी स्टिमुलस इट हैपन, ठीक है। तो उसके इसके बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आप निकाल सकते हो कि क्या
इसमें आपको इसका ये जो फीचर है आरबीसीज का, ये ऐसा क्यों होता है, पर वो जो आरबीसीज ना एक दूसरे के ऊपर ऑन टू वन अनदर वो क्लाइंब करती है, उसको ऐसा कहते हैं कि वो क्लाइंब करती है, और उसको कहते हैं रिलैक्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, bundle of hairs is found in हार्ट, ऑरिकल्स, वेंट्रिकल्स, साइनस, वेनोसिस, कहाँ पे ये मिलता है? ठीक है, तो दिस इज योर क्वेश्चन। So answer is ventricles. So bundle of hairs is found in ventricles. So what is this actually? So हम थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ओके, so just a minute, bundle of hairs. So bundle of is the bundle of cardiac muscle fibers that conducts the electrical impulse that regulate the heartbeat from the atrioventricular node in the right atrium to the septum between the ventricles and then to the left and right ventricle. ठीक है, हार्ट बीट का भी आपको क्या लगता है कि पंपिंग होता है? हार्ट बीट क्यों तैयार होते हैं? बिकॉज ऑफ द पंपिंग एक्शन ऑफ योर हार्ट। ओके, तो जब हार्ट पंप ब्लड पंप करता है तो उस पंपिंग का भी एक पर्टिकुलर क्या होता है, डायरेक्शन होता है, ऐसे रैंडमली पंप नहीं होता है। ठीक है, so because of this particular pumping direction of your heart, ठीक है, those beats also have some kind of pattern। ठीक है, तो उसका जो कुछ भी यू कैन से अराइज होता है ना बीट का, वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होता है। और उसमें जो वेंट्रिकल्स में ये जो बंडल शीथ प्रेजेंट्स होते हैं, तो उनका का वो बंडल मतलब वो किसका बंडल होता है? वो कार्डियक मसल्स का बंडल होता है। ठीक है, कार्डियक मसल्स मींस मसल्स प्रेजेंट इन योर हार्ट। ठीक है, उसका एक ये बंडल होता है, और ये बंडल का काम क्या होता है? वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कंडक्ट करता है। क्यों? और वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्या करते हैं? वो आपकी हार्ट बीट को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर पैटर्न उसका जो होता है ना वो मेंटेन करते हैं। आया समझ में? सो उसका उन्होंने डायरेक्शन भी दिया है कि कैसे होता है, फ्रॉम द एवी नोड in the right atrium to the septum between the ventricles and then to the left and right ventricle, ऐसा उसका क्या होता है? You will see direction. Okay, so his bundles are nothing but the bundles of your cardiac muscles which carry electrical impulse to regulate your heartbeats. Okay, now next question. Universal donors have no antigens in RBCs but have both antibodies A and B. They belong to blood group. Very simple question. Think for just 30 seconds. There are two hints in this question: universal donor, and then it is mentioned that they have both antibodies A and B. So which should be the answer? Think for just 30 seconds. So yes, ready है क्या? So universal donor किसे कहते हैं? So answer is O. O is called as universal donor while AB blood group is called as universal acceptor because it lack both the antibodies A and B, but it has the antigen, both the antigens present over its surface, that is R and sorry, A and B. Okay, so AB is universal acceptor while O is universal donor. Okay, is that clear? तो एक्चुअली आप सोचेंगे कि आपकी ये सर्कुलेशन चैप्टर में ये क्वेश्चन क्यों है? बिकॉज दिस एंटीजेंस आर प्रेजेंट over the surface of your RBCs. So your each and every RBC carries these antigens over their surface. ठीक है? So आया समझ में क्या उसके पीछे लॉजिक है? तो आपको ये भी सीखने को मिलेगा आगे जब हायर
यहाँ पे आप जाओगे हायर, you will see your degree. In your degree you will study this pattern, that the how these antigens are attached to your RBCs. they are attached with sugar moiety. क्या स्ट्रक्चर होता है उसका, बायोकेमिकली वो कैसे उसका अटैचमेंट होता है, वो सब आप सीखेंगे. और अगर आपको अभी सीखना है, इफ यू हैव इंटरेस्ट, so let me know. I'll talk to you about that. Okay. Okay. Next, the instrument used for measuring blood pressure is known as ECG, stethoscope, sphygmomanometer and EEG. क्या कहते हैं हम उसे? उसे कहते हैं sphygmomanometer. Okay. So this is the instrument used for measuring blood pressure. Okay. Very simple but yet very you can say characteristic instrument it is. Okay. So sphygmomanometer. Now next question. The ECG is used to detect. ECG क्यों निकालते हैं? Heart attack, heart block, coronary thrombosis and all of the above. So what is ECG? It is electrocardiograph. Okay. So what's the correct option? So heart attack, heart block, coronary thrombosis, ये सब हम किससे मेजर कर सकते हैं? ये हम मेजर कर सकते हैं ECG से. ठीक है. सो ECG एक्चुअली एक ग्राफ होता है. जैसे कि आप ग्राफ निकालते हो ना अलग अलग आपके यहाँ पे, तो वैसे ही ये ग्राफ होता है एक टाइप का. और by the study of this graph you'll find the what is a problem in your blood flow or a problem in your you can say your heart beats. ये सब हम क्या करते हैं उसमें स्टडी करते हैं. ठीक है. सो ECG से आपका, और आपने ये देखा होगा कि अगर आपके घर में कोई किसने एंजियोप्लास्टी किया है, एंजियोग्राफी किया है, तो उसका सबसे पहले क्या आता है? ECG आता है. एंड बाय द स्टडी ऑफ दैट ECG डॉक्टर सजेस्ट यू दैट दिस पर्सन शुड बी अंडरगॉन थ्रू एंजियोप्लास्टी और एंजियोग्राफी. ठीक है. तो सबसे पहला प्राइमरी, जब भी हार्ट रिलेटेड कोई भी यू कैन से प्रॉब्लम आता है ना, तो सबसे पहले किसका ये करते हैं? ECG, दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो होता है या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होता है उसका स्टडी करते हैं. ठीक है. So what is this electrocardiograph? It is a graphic record of electrical variations produced by the heart during one heartbeat or cardiac cycle. So what is one cardiac cycle? One systole and diastole. ठीक है. आया समझ में? तो उसे हम क्या कहते हैं? ECG. उसका एक पैटर्न होता है. नॉर्मल का पैटर्न कैसा होता है? तो देयर आर वेरियस ridges and furrows, that is called as P. Various waves are known as P waves, QR is complex and T waves. Okay. ठीक है. So there are various patterns which are shown by normal human beings. So by comparing those normal patterns, doctor can understand that this person is diseased one because his pattern or her pattern is not matching with normal human being. Okay. So ये इस तरह से वो स्टडी किया जाता है. तो उसके पहले कोई भी अगर आपके पास ग्राफ है, कोई भी आपने कभी NMR पढ़ा होगा, तो कोई भी ग्राफ आप जब स्टडी करते हो, तो वो स्टडी करने से पहले आपके हाथ में स्टैंडर्ड बहुत नेसेसरी है. सो स्टैंडर्ड हेल्प्स यू टू कंपेयर, helps you in comparison. Okay. तो exactly comparison कैसे होना चाहिए? आया समझ में? So standard or you'll see control is very much important in your each and every operation. In your normal practicals also, या experiments also, controls and standards are very much important. Because selection of control and selection of standards is a skill. Okay. तो आपका आधा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल वही हो जाता है कि अगर आपने अच्छा या परफेक्ट कंट्रोल चूज किया तो. ठीक है. नाउ नेक्स्ट,
Cords of Billroth are blood spaces found in spleen, tonsils, liver, kidneys. ये क्या होता है? Cords of Billroth. So these are found in spleens. ठीक है, तो हम उसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली ये क्या है, बिकॉज आई थिंक दिस कंसेप्ट इज टोटली न्यू फॉर यू. ओके, so we'll find or we'll read something over that. So these are splenic cords. So these are known as splenic cords. They are the cellular aggregations means you can say clumps or जैसे कि हमने ये आरओएसिस के बारे में पढ़ा था ना, स्टैक्स. ठीक है, सो स्टैक्स और क्लम्प्स होते हैं ये, सपोर्टेड बाय द रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, they appear as strips and consist of macrophages, plasmacytes and blood cells. ठीक है, सो ये आपके इसमें स्प्लीन में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, एंड दे आर फाउंड इन द रेड pulp of the spleen between the sinusoids consisting of fibrils and connective tissue cells with a large population of monocytes and macrophages. ठीक है, आया समझ में? सो रेड पल्प में होता है. और ये रेड पल्प क्या होता है? ये रेड पल्प एक स्प्लीन के जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं ना, उसको, उसके नेटवर्क को रेड पल्प कहा जाता है. और ये कॉर्ड्स ऑफ बिलरॉथ जो होते हैं वो उस रेड पल्प में प्रेजेंट होते हैं. आया समझ में? नाउ नेक्स्ट, which of the following has least urea? Pulmonary vein, hepatic portal vein, hepatic vein, renal vein. See the connection between your two lessons. Okay, so आपका जो excretion and osmoregulation है वो आपके सर्कुलेशन से कैसे रिलेटेड है? क्योंकि ब्लड में ही यूरिया का ये क्या ट्रांसपोर्ट होता है. ठीक है, तो इनमें से किस में लीस्ट यूरिया कंटेंट होता है? तो व्हाट आर द ऑप्शंस? रीनल वेन. रीनल वेन में लीस्ट यूरिया होता है प्रेजेंट. आया समझ में? तो इसका मतलब क्या है? ये ऊपर वाले तीन जो है उनमें कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ यूरिया प्रेजेंट होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, cardiac output per minute during normal working man is about 2 liters, 5 liters, 10 liters, 20 liters. ठीक है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है पर मिनट? हाँ, सो इट इज 5 liters. ठीक है, 5 liters पर मिनट. आया समझ में? तो पंपिंग का आउटपुट मीन्स क्या? ये पंपिंग का रेट दिया है उन्होंने कि ब्लड पंप कितना होता है. सो क्या बात है एग्जैक्टली कि एक बार किया गया पंप किया गया ब्लड दोबारा नहीं कर सकते, ऐसी तो कोई बात नहीं होती. ठीक है, आया समझ में? तो क्या होता है कि पंपिंग मतलब वो एक साइक्लिक प्रोसेस होती है, वो चलती ही रहती है. और पर मिनट ड्यूरिंग वर्किंग इन मैन, सो उसका 5 लीटर्स ये क्या होता है? आउटपुट रहता है. ठीक है, चलो नेक्स्ट. फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पस्कल्स इज नोन एज. ब्लड कॉर्पस्कल्स को क्या कहते हैं? हीमोलिसिस, रोलेक्स, हीमोपायोसिस एंड फाइगोसाइटोसिस. क्या कहेंगे? आंसर इज हीमोपायोसिस. ठीक है, सो पायोसिस मींस द फॉर्मेशन. आया समझ में? सो उसे आप कहेंगे हीमोपायोसिस. अब हीमोलिसिस क्या होता है? इट इज द डिस्ट्रक्शन और लिसिस और यू कैन से डेथ ऑफ द आरबीसीस इज नोन एज हीमोलिसिस. ठीक है, फिर रोलेक्स आपको पता है वो स्टैक बनता है आरबीसीस का, उसे रिलैक्स कहते हैं. फाइगोसाइटोसिस मतलब क्या? वो सेल को जब सेल दूसरे सेल को या दूसरे पैथोजन को या कुछ भी फॉरेन पार्टिकल को इनगल्फ करती है बाय दी अमीबा लाइक मूवमेंट, इट इज नोन एज फाइगोसाइटोसिस. ठीक है, ये भी आपको पता है. आया समझ में? सो फॉर्मेशन ऑफ ब्लड कॉर्पस्कल्स. सो ब्लड कॉर्पस्कल्स बोला है, वो कुछ भी हो सकता है. वो आरबीसी हो सकता है, वो आपके ये हो सकते हैं डब्ल्यूबीसी हो सकते हैं, आपके ये भी हो सकते हैं प्लेटलेट्स हो सकते हैं. तो इन सबको ब्लड कॉर्पस्कल्स या ब्लड सेल्स कहा जाता है. तो उनका फॉर्मेशन जाना जाता है इस नाम से, हीमोपायोसिस. ओके, नाउ नेक्स्ट,
squeezing of leukocytes out from the capillary walls to fight foreign agents is known as. So I told you in last lecture कि आपके जो ये WBCs होते हैं ना, ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं ना, वो आपके soldiers होते हैं. So these are involved in your you can say your immunity system. Okay, so diapedesis, diapins, diaphysis and dikinesis क्या कहा जाता है इस प्रोसेस को? So it is diapedesis, diapedesis. ठीक है. So कैपिलरी वॉल्स के आउट उनको भेजा जाता है कि जाओ आप लोग लड़ो. ओके, तो इस प्रोसेस को कहा जाता है डायपेडेसिस. ओके, आया समझ में? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. टू स्टोर ब्लड some anticoagulant is added. So why this anticoagulant added? First of all, so आपको पता है कि blood जब outer body environment में होता है, so blood has the natural tendency to coagulate. ठीक है, क्योंकि blood को इतना ही पता है कि अरे मैं मेरे बॉडी के बाहर हूँ, ठीक है, बफर प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे कोई भी, और मुझे अब क्या करना है कि फ्लो मेरा कम करना है. ये इतना ही ब्लड को पता होता है. तो ये ब्लड जब आप ऐसे ही रख देते हो ऊपर, आप कभी ये कर सकते हो, मतलब ये घर पे ब्लड निकालने की कोई जरूरत नहीं है, पर आप देख सकते हो लैब्स में कि कभी उन्होंने ब्लड ऐसे ही रख दिया. उनके वो स्पेशल जो वायल्स होते हैं उसमें नहीं रखा और ऐसे ही ओपन रख दिया, तो क्या होता है, वो ब्लड थोड़ी देर के बाद एक तो उसका हिमोलिसिस होता है, नहीं तो वो ऐसा यू कैन से पूरा का पूरा वो ऐसा इकट्ठा हो जाता है. ठीक है, तो इसलिए जब टेस्ट वगैरह करना पड़ता है ब्लड के, तो वो ब्लड उसके नेचुरल विस्कोसिटी में प्रेजेंट होना चाहिए. ओके, सो फॉर दैट पर्पस सम काइंड ऑफ anticoagulant is added. So which are the anticoagulant? NaCl, sodium oxalate, KCl and thromboplastin. So which are the anticoagulant? So it is sodium oxalate. Okay, so there are also some other anticoagulants which are routinely used. आपने वो देखा होगा, आप जब ब्लड टेस्ट करने के लिए जाते हो तो बहुत बार आपका जो ब्लड होता है ना, वो EDTA नाम का जो एक से कलर्ड प्रोडक्ट होता है, तो दैट EDTA is act as anticoagulant. So ब्लू कलर की एक रबर का उसको ये रहता है, वायर को कैप रहती है, तो आप कभी वो पढ़ो, वहां पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है कि EDTA एंटीकोagulated ब्लड. ठीक है, सो वहां पे EDTA ये प्रेजेंट होता है. सो आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कभी कि विच इज द नेचुरल एंटीकोagulant प्रेजेंट इन द बॉडी. सो व्हाट शुड बी आंसर इन दैट केस? सो आंसर शुड बी हिप्पैरिन. ठीक है, तो जिस ब्लड में हिप्पैरिन प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं हिप्पैरिनाइज्ड ब्लड. ठीक है, सो कोएगुलेशन रिएक्शन जो होती है ना ब्लड में, तो वो ये एंटीकोएगुलेंट्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स नेचुरल विस्कोसिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लड does not transport oxygen in man, frog, cockroach, parenchyma. So कॉकरोच में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट थ्रू ब्लड नहीं होता है. ठीक है, तो किससे होता है ये आप फाइंड आउट करें कि एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होती है जिससे ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है. ओके, आया समझ में? चलो, now we'll see the next question. Blood circulation that starts as capillaries and terminates as capillaries is called as. So आपका बॉडी का जो पूरा नेटवर्क है ना, तो वो कैपिलरी नेटवर्क होता है पूरा का पूरा. और आपने कभी मतलब ये आपका स्टडी का सब्जेक्ट तो है नहीं, पर फिर भी आपने कभी एक टाउन डेवलपमेंट या टाउनशिप मैनेजमेंट के कोर्सेज देखे
या उसमें जो प्रिंसिपल थियोरीज है वो देखे ना, तो एक वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का उनका जो पैटर्न रहता है ना, वो बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा है कि बॉडी का जो ब्लड ब्लड सर्कुलेशन का जो नेटवर्क है ना पूरा, तो उससे इंस्पायर होके उन लोगों ने वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट का नेटवर्क का थियोरी प्रपोज किया है। ठीक है। सो आप में से कोई अगर धुलिया का है, ठीक है, धुले में से आप है अगर, तो आपको ये समझ में आएगा कि वहाँ का जो पूरा का पूरा ये है, पानी का पूरा नेटवर्क है, तो वो साइफन नेटवर्क कहा जाता है उसे, एंड दैट इज अ टाइप ऑफ वन कैपिलरी नेटवर्क। ठीक है। सो ये मैंने ऐसे ही बोल दिया आपको जनरल नॉलेज के लिए। तो ब्लड सर्कुलेशन दैट starts as capillaries and terminate as capillaries is called as hepatic circulation, portal circulation, renal circulation and lymphatic circulation. So capillary to capillary जब ट्रांसपोर्ट होता है तब उसे कहते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। और आपकी बॉडी अलग अलग टाइप्स के पोर्टल बनाती है, आया समझ में? सो अलग अलग टाइप के क्या बनाती है, पोर्टल्स बनाती है। सो एक ऑर्गन से उसका एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जब एक पर्टिकुलर पोर्टल तैयार होता है तो उसका एक नाम भी होता है। ऐसा क्वेश्चन आई थिंक पिछले लेक्चर में, फर्स्ट पार्ट जो है इस लेसन का, उस लेक्चर में हमने देखा था कि किस टाइप के पोर्टल्स वहां पे बॉडी तैयार करती है, अलग अलग पोर्टल्स तैयार करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट, आफ्टर वैक्सीनेशन द बॉडी बिल्ड्स अप एंटीटॉक्सिन्स, टॉक्सिन्स, एंटीबॉडीज, एंटीजेन्स। सो बॉडी वैक्सीनेशन होने के बाद ऐसा आपके बॉडी में क्या होता है कि आपकी बॉडी सारे डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट कर सकती है। ऐसा एग्जैक्टली क्या होता है? सो बॉडी डेवलप्स एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर एंटीजेन। ठीक है। तो जब भी कभी आपके बॉडी में इंफेक्शन एनकाउंटर होता है या कुछ भी फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में इंटर होता है, तो आपके बॉडी के पास एंटीबॉडीज तैयार रहते हैं। ओके, आया समझ में? सो देयर इज वन बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्टिव इम्यूनिटी एंड passive immunity, that when you are providing your body with active immunity, that means you are providing a killed antigen or attenuated antigen. ओके। सो आपकी बॉडी खुद एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है। तो जब वो एंटीबॉडी खुद बनाती है तो उसके पास एक टाइप की मेमोरी होती है, और इसलिए अगर कोई भी वैसा का वैसा कोई भी पार्टिकल बॉडी में फिर से आया तो योर बॉडी कैन मेक एंटीबॉडीज अगेन। ओके, बट देयर इज सम लैक्यूने इन पैसिव इम्यूनिटी इज दैट कि आपके पैसिव इम्यूनिटी में क्या बात होती है कि आप रेडीमेड एंटीबॉडीज देते हो आपके आपके बॉडी में, तो देयर इज नो गारंटी दैट योर बॉडी will keep that in her mind and make the antibodies again in the against the same pathogen। ठीक है। इसलिए एक्टिव इम्यूनिटी जो होती है वो हमेशा थोड़ी सी क्या होती है, यू विल सी, उसको ज्यादा वेटेज इस रीजन से होता है। इसलिए आपका जो आप बचपन में जो वैक्सीन लेते हो ना, बीसीजी का, ओके, टिटेनस का, तो ये सारे के सारे जो वैक्सीन है वो एक्टिव इम्यूनिटी के अंडर आते हैं। ओके। और ये जो टेम्पररी वैक्सीन होते हैं ना, पोलियो भी एक्टिव इम्यूनिटी के अंडर आता है। ये जो टेम्पररी मेडिसिन आते हैं फीवर के अगेंस्ट, आपको बहुत ज्यादा फीवर आया, आपको 5-6 तक फीवर गया, तो आपको एक अर्जेंटली क्या करते हैं, इंजेक्शन देते हैं। तो वो जो होता है ना, तो वो एक्चुअली आपका पैसिव इम्यूनिटी के अंडर आता है। Okay, is that clear? Mother's milk comes under passive immunity. Okay, chalo. So now next question, which has the thickest wall? Thickest wall किसकी होती है? Right auricle, right ventricle, left auricle, left ventricle। जहाँ पे फोर्स ज्यादा वहां पे वॉल ज्यादा, थिक वॉल ज्यादा। ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की, आपके हार्ट की लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल थिकेस्ट होती है। ओके, चलो ना
नेक्स्ट क्वेश्चन, largest erythrocyte in vertebrate measuring about 30 micron in diameter are found in, ओके, सो लार्जेस्ट एरिथ्रोसाइट जो होती है वो कहाँ पे मिलती है आपको, ठीक है। सो डायमीटर दिया है 30 माइक्रॉन्स का। सो एलिफेंट, हॉर्स, एम्फियोमा एंड लायन। सो किसमें सबसे बड़ी एरिथ्रोसाइट आपको मिलेगी? एरिथ्रोसाइट मींस आरबीसी। सो इन एम्फियोमा यू विल फाइंड the largest erythrocyte present in your means in that animal's body, okay, आया समझ में? तो अब हमें लगता है कि एलिफेंट सबसे बड़ा एनिमल है, तो उसमें सबसे बड़ी यू कैन से एंटीबॉडी प्रेजेंट, एंटीबॉडी नहीं, ये आपकी एरिथ्रोसाइट प्रेजेंट होगी। तो वैसी तो कोई बात है नहीं। तो सबसे ज्यादा जो एक एम्फीबियन होता है ये एम्फियोमा, तो उसमें ये प्रेजेंट होती है। उसका जो अपीयरेंस है वो ऐसा स्नेक जैसा या अर्थवर्म जैसा उसका थोड़ा सा एक अपीयरेंस रहता है, ठीक है। तो एम्फीबियन है वो, और ऐसा, और यू कैन से एक उसके नीचे माउथ के थोड़ा सा नीचे और पोस्टेरियर पार्ट जो होता है ना उसके नीचे ऐसे दो लिम्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो आप उसके बारे में पढ़ सकते हो कि वो कैसा दिखता है एग्जैक्टली, ठीक है, और उसका इमेज भी देख सकते हो। एक्चुअली दिखाऊं क्या आपको? जस्ट अ मिनट, हम ये एम्फियोमा की इमेज देखते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, जस्ट अ मिनट, हम देखने की कोशिश करते हैं कि हमें ये एम्फियोमा की इमेज दिखती है या नहीं। जस्ट अ मिनट। ओके, सो एम्फियोमा, ओके, सो see the image, yes, okay, so this is the amphioma, okay, okay, are you able to see? ठीक है, so this is the amphioma, और इसमें आप देख सकते हो कि लार्जेस्ट एरिथ्रोसाइट प्रेजेंट होती है जिसका डायमीटर क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली 30 माइक्रोन का उसका क्या होता है, डायमीटर होता है। ओके, आया समझ में? तो ये ऐसा स्नेक जैसा ये एनिमल होता है। ओके, तो उसके बारे में ज्यादा की इंफॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। ओके, चलो, नाउ विल कंटिन्यू विथ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो next, leukopenia is the condition in which the total number of leukocytes in which below 5000 per cubic mm, the total number of leukocytes increases above 6000 cubic per mm, bone marrow is restored and formation of leukocytes stop. So leukopenia is the disease in which the total number of leukocytes is डिक्रीजेस, ओके। तो आप जब ये टेस्ट करते हो, अलग अलग जो टेस्ट करते हो, आपको इन्फेक्शन है कि नहीं वो एनकाउंटर करने के लिए या वो फाइंड आउट करने के लिए, तब आपको वहां पे अगर नॉर्मल एक जो काउंट है उसके नीचे या उसके अबव अगर आपका कुछ काउंट गया तो वहां पे वो अंडरलाइन करके देते हैं, ठीक है। अगर ज्यादा हुआ तो भी अंडरलाइन करते हैं और कम हुआ तो भी करते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी बढ़ना, दैट मींस योर बॉडी इज फेसिंग सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, आया समझ में? तो 5000 के बिलो अगर उसका टोटल नंबर गया ल्यूकोसाइट्स का तो उसे कहते हैं ल्यूकोपेनिया, ठीक है।
And now the last question, the amount of water present in blood plasma is 60%, 70%, 80%, 90%. So answer is 90%. So there are only 10% composition in which other you can say components are present in your plasma. So approximately 90% of water is present in your blood plasma. Okay, so we are done with this topic, that is circulation. Again, I'll suggest you that make your notes. Okay, uh, then try to solve many more such questions, and if still you have some kind of doubt or query, you can contact me whenever you want. Okay, so we'll stop here. Thank you so much and all the best. See you in the next lecture. Thank you.